Now, students, look at next problem. These are all board questions. They are asked in the board. Find dy by dx if y is given. 5 e raised to x upon 3 e raised to x plus 1. Okay, and where dy by dx at x equal to 0. ये थोड़ा नया है आपके लिए. ठहरो, x equal to 0 का मतलब आप पहले डेरिवेटिव फाइंड करो और बाद में x को 0 पुट करो. इसको वेट करो, ये ठहरो. सो पहले y लिखिए 5 e raised to x upon 3 e raised to x plus 1. हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x. तो क्या होगा रे? d by dx of y is d by dx of 5 e raised to x upon 3 e raised to x plus 1. बच्चों, इस 5 को मैं अभी भी कॉमन ले सकता हूं. तो ये क्या हो जाएगा? dy by dx इक्वल टू u by v से पहले 5 कॉमन लीजिए तो डेरिवेटिव हो जाएगा e raised to x upon 3 e raised to x plus 1. इसको बाद में भी कॉमन ले सकते थे, ऐसे कुछ नहीं. अगर आपको टेंशन है तो ठीक है, ऐसे ही रखो. इतना आप इनिशियल स्टेज पे हो तो dy by dx of dy by dx इक्वल टू ऐसे ही रखो. चलो 5 e raised to x का डेरिवेटिव. अब बच्चे यहाँ पे u by v रूल करना पड़ेगा. तो पहले v आएगा 3 e raised to x plus 1. डेरिवेटिव ऑफ कौन होगा? 5 e raised to x होगा माइनस इंटरचेंज करो 5 e raised to x. डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट में कौन है? 3 e raised to x plus 1 है अपॉन ये जो ब्रैकेट नीचे v है 3 e raised to x plus 1 ब्रैकेट क्या होगा? स्क्वायर. अंडरस्टूड? v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस अल्टीमेटली u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर. सो हमारा dy by dx will become 3 e raised to x plus 1. Now what is derivative of 5 into e raised to x? 5 common into derivative of e raised to x minus 5 e raised to x. What is derivative of 3 e raised to x plus 1? ये डेरिवेटिव u प्लस v रूल है तो दोनों को डेरिवेटिव देना पड़ेगा. तो यहाँ पे स्लोली करेंगे. डेरिवेटिव ऑफ 3 e raised to x प्लस डेरिवेटिव 1 को मैं डायरेक्ट 0 लिखूं तो आपको कैसा लगेगा? d by dx of 1 लिखने से अच्छा मैं 0 लिखता हूँ. डोंट राइट डेरिवेटिव एंड 0 बोथ. हाँ, ये डेरिवेटिव लेने के बाद वो 0 हो गया. अंडरस्टूड? अपॉन 3 e raised to x plus 1 the whole square. तो 3 e raised to x plus 1 ये 5 को मैं पहले लिखा. डेरिवेटिव e raised to x is e raised to x minus 5 e raised to x. डेरिवेटिव of 3 into e raised to x 3 common into derivative of e raised to x upon 3 e raised to x plus 1 the whole square. Okay, meanwhile ये देखो 5 into 3 e raised to x plus 1 into e raised to x minus 5 e raised to x 3. Derivative of e raised to x is e raised to x upon 3 e raised to x plus 1 the whole square. अभी आपको dy by dx at a point पूछा है तो dy by dx खाली पूछा होता ना उसको मेकअप करना जरूरी था. आप जरूरी नहीं आप मेकअप करो, लेकिन चलो ठीक है भाई, अभी आपके सामने है तो क्या क्या कॉमन लेंगे? इट इज बेटर 5 और e raised to x कॉमन लेंगे. 5 और e raised to x कॉमन लेंगे. सो 5 into e raised to x कॉमन लिया तो बड़ा सा ब्रैकेट होगा. 5 गया, e raised to x गया, क्या बचा रे? 3 e raised to x plus 1 माइनस 5 और e raised to x गया, क्या बचा? 3 e raised to x अपॉन 3 e raised to x plus 1 the whole square. अरे ये 3 e raised to x प्लस ब्रैकेट ही है यार, ब्रैकेट छूटने के बाद क्या होने वाला है? ये 3 e raised to x बरोबर कि नहीं? ये प्लस और ये माइनस कैंसिल होने वाला है. तो आंसर क्या आएगा? 5 e raised to x into 1 upon 3 e raised to x plus 1 the whole square. So हमारा dy by dx क्या होने वाला है? dy by dx होने वाला है 5 e raised to x upon 3 e raised to x plus 1 the whole square. ये हमारा dy by dx का आंसर है. पर हमें क्या करना है? हमें चाहिए dy by dx. Find dy by dx if y is this at x equal to 0. Where do you want dy by dx? At x equal to 0. So I will write here with a black pen probably. So क्या लिखूंगा मैं? dy by dx उसकी कंडीशन है at x equal to 0 means ये जो dy by dx का आंसर था वहाँ x के जगह 0 लिखो. तो 5 e raised to x को 0 लिखो अपॉन 3 e raised to x को 0 लिखो, x को 0 लिखो प्लस 1 द होल स्क्वायर.
जहां x है वहां 0 लिखो। आंसर क्या आएगा? 5 इंटू a raised to 0 is 1 upon 3 into e raised to 0 is 1 plus 1 the whole square. 5 ones are 5 upon 3 ones are 3. 3 plus 1 कौन है? 4 the whole square. Answer 5 by 60. Understood? ये हमारा आंसर है. So dy by dx at x equal to 0. Understood? Please take down. बराबर दिख रहा है वो आंसर? That is 5 divided by 60. Student, the next problem before us is y equal to 1 plus root x upon 1 minus root x. Heading वही है, find dy by dx. तो डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x. सो यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस रूट एक्स अपॉन 1 माइनस रूट एक्स. कौन रूल है ये? ऊपर वाला नीचे वाला ब्रैकेट, ये रूल है u बाई v, क्वोशंट रूल. डी बाई डी एक्स ऑफ वाई को हम बुलाते हैं dy बाई डी एक्स. व्हाट इज डेरिवेटिव u बाई v? v. And it's 1 minus root x d by dx of u and 1 plus root x. प्लस या माइनस? अरे गधो, u इंटू v में प्लस, u by v में माइनस है, इंटरचेंज. 1 plus root x d by dx of ये 1 minus root x अपॉन v का स्क्वायर 1 minus root x the bracket square. Agreed? क्या होगा? 1 minus root x. Attack derivative of 1 plus root x. Derivative 1 plus d by dx of root x minus. Next क्या है? 1 plus root x. Derivative 1 minus root x. U minus v rule. Derivative 1 minus डेरिवेटिव रूट एक्स अपॉन कौन है ये? 1 माइनस रूट एक्स द होल स्क्वायर. दैट इज इक्वल टू 1 माइनस रूट एक्स. 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट 0 है, रूट एक्स का डेरिवेटिव है 1 बाय 2 रूट एक्स माइनस ब्रैकेट 1 प्लस रूट एक्स. डेरिवेटिव 1 0 पहले भी डायरेक्ट लिख सकते थे, माइनस रूट एक्स का डेरिवेटिव, रेडीमेड फॉर्मूला है 1 में 2, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय 2 रूट एक्स अपॉन कौन है ये? 1 माइनस रूट एक्स द होल स्क्वायर. तो व्हाट इज आवर dy बाय dx इक्वल टू, ऊपर वाला सॉल्व करो, 1 माइनस रूट एक्स इंटू 1 बाय 2 रूट एक्स है, 1 माइनस रूट एक्स इंटू 1 बाय 2 रूट एक्स है. बराबर है कि नहीं? माइनस और ये माइनस प्लस 1 प्लस रूट एक्स इंटू 1 बाय 2 रूट एक्स. बराबर ना? माइनस माइनस प्लस अपॉन 1 माइनस रूट एक्स द होल स्क्वायर. समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ये सब सिंप्लीफाई करने से अच्छा है, बेटर यू टेक दिस टर्म कॉमन. देखो बच्चा, अक्खा का अक्खा कॉमन आता है. कौन है अक्खा का अक्खा? 1 बाय 2 रूट एक्स, टोटल ब्रैकेट कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा? ये गया तो 1 माइनस रूट एक्स प्लस 1 बाय 2 रूट एक्स कॉमन गया तो क्या बचेगा? 1 प्लस रूट एक्स अपॉन 1 माइनस रूट एक्स द होल स्क्वायर. अंडरस्टूड? सो dy by dx is equal to 1 by 2 root x. Now this is minus root x and this plus root x cancels each other, and 1 plus what you get? 2 upon 1 minus root x the whole square. So that dy by dx is equal to, ये 2 cancels, तो ऊपर क्या बचा? 1 upon root x divided by 1 minus root x the whole square. आपको पता है a upon b upon c होता है a upon b into c, है ना? ये मल्टीप्लाई होते हैं, और ये c upon d है तो भी वो d upon c होता है.
अल्टीमेटली जो ऊपर है नीचे वो ऊपर इसको मल्टीप्लाई होता है और हमेशा ये दो ही मल्टीप्लाई होंगे। नीचे डी है भी तो वो डी अपॉन सी होगा, तो बी और सी मल्टीप्लाई होने वाले, तो ए अपॉन बी अपॉन सी इज ए अपॉन बी सी। सो व्हाट इज योर dy बाय dx? 1 upon root x upon this is root x into 1 minus root x the whole। ये ओपन करने की जरूरत नहीं रहेगी, दिस विल रिमेन लाइक दिस एंड ये हमारा फाइनल आंसर। ओके, और आपके लिए होमवर्क है y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 1। इंटरेस्टिंग है, आप इसका फाइन क्या करने का है, dy बाय dx। ओके, प्लीज फाइन एंड पोस्ट करो आपका आंसर ग्रुप पे, डरो मत, सो दैट अदर्स कैन आल्सो चेक। Now this is also one of the board questions. Y equal to sin x plus cos x upon sin x minus cos x। सबका हेडिंग एक ही है, मैं हमेशा मिटा दो गलती से। Find dy by dx। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। So d by dx of y is equal to d by dx of sin x plus cos x upon sin x minus cos x। बच्चों एक u है और एक v है, u by v रूल है, दिस बिकम्स dy by dx। थोड़ा 12 को 15 क्वेश्चन जैसा लंबा होगा प्रॉब्लम। द रेट ऑफ u by v इज v कौन है नीचे वाला, sin x माइनस cos x ऊपर जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ ऊपर का u sin x प्लस cos x बराबर माइनस, मैं यही लिखता हूँ नहीं तो पूरा खा जाएगा, माइनस इंटरचेंज, आप सामने लिखो, आपके पास बड़ा नोटबुक है, sin x प्लस cos x डेरिवेटिव ऑफ v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव v। ये क्या होने वाला है, sin x प्लस cos x बाहर, डेरिवेटिव क्या होने वाला है, sin x माइनस cos x। इस सबको अपॉन करके ये जो v है नीचे वाला इसका स्क्वायर, कौन है वो, sin x माइनस cos x द होल स्क्वायर। सो अपना dy बाय dx इज इक्वल टू क्या होगा रे, देखिए ये होगा sin x माइनस cos x। चलो अटैक करो अंदर, मैं डायरेक्ट नहीं लिखूंगा, ये होगा डेरिवेटिव ऑफ sin x प्लस डेरिवेटिव ऑफ cos x, करेक्ट, माइनस ये कौन है, sin x प्लस cos x, ये क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ sin x माइनस डेरिवेटिव ऑफ cos x बराबर अपॉन बापरे बड़ा औसम है, ये जो v स्क्वायर ये कंटिन्यू, ये कभी सॉल्व नहीं करने का, sin x माइनस cos x द होल स्क्वायर, इसकी जरूरत नहीं एक्सपांड की, ऐसे रहेगा। तो मैं यहाँ आऊंगा, dy बाय dx इज इक्वल टू, चलो ये sin x माइनस cos x, sin x माइनस cos x, डेरिवेटिव ऑफ sin x is cos x plus डेरिवेटिव ऑफ cos x it is minus sin x, माइनस ये कौन है, sin x plus cos x into डेरिवेटिव ऑफ sin x ये है cos x माइनस डेरिवेटिव ऑफ cos x वो है माइनस ऑफ sin x अपॉन नीचे कौन है, sin x माइनस cos x द होल स्क्वायर। विजिबल है क्या बेटा, वो ट्यूबलाइट का वहां प्रकाश आता है, दिख रहा है ना, sin cos x माइनस, करेक्ट दिख रहा है, ये डेरिवेटिव sin x कौन है, मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ उसको तो बराबर दिखाई देगा, माइनस कलर बदलता हूँ इसको, माइनस के बाद माइनस ये कौन है, sin x प्लस cos x, sin x का डेरिवेटिव है cos x माइनस cos x का है माइनस sin x, कंप्लीट अंडरस्टूड, थोड़ा छोटा हो गया, तो दैट इज इक्वल टू ये है sin x माइनस cos x और ये है cos x माइनस sin x माइनस ये sin x प्लस cos x और ये है cos x प्लस sin x
अपॉन ये कौन है sin x minus cos x the whole square. So dy by dx is equal to, बच्चों आपको एक्सपांड करना पड़ेगा. पहले sin x लिखते टाइम sin x cos x को sin x cos x लिखो, लेकिन cos x sin x को भी sin x cos x लिखो. cos x into sin x is sin x into cos x. पहला sin रखो बाद में cos, तो sin into cos क्या होगा रे sin x cos x माइनस साइन इंटू साइन क्या होगा रे साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होगा रे माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस ये कॉस एक्स इंटू साइन एक्स लिखो क्या उसको साइन एक्स कॉस एक्स माइनस. अब मैं कलर बदलता हूँ. हाँ नेक्स्ट के लिए मैं कलर करता हूँ ब्लैक. साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होगा रे साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स इंटू साइन एक्स क्या होगा रे प्लस साइन स्क्वायर एक्स. अब कॉस एक्स की बारी कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होगा रे कॉस स्क्वायर एक्स कॉस एक्स इंटू साइन एक्स क्या होगा रे साइन एक्स कॉस एक्स ब्रैकेट क्लोज अपॉन जो भी कुछ है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स वो तो कंटिन्यू होने वाला है, उसको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है. अंडरस्टूड. तो थोड़ा सेपरेटर को मैं डिजाइन कर देता हूँ. लंबा प्रॉब्लम है, डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट टू एडजस्ट है. सो दैट इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स क्या करें 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन माइनस माइनस साइन कॉमन करेंगे तो क्या होगा रे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होगा बराबर माइनस sin x cos x क्या होगा रे 2 sin x cos x होगा प्लस बच्चों ये sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x आंसर क्या आएगा अभी मैं लिख देता हूँ 1. ये भी बाद में 1 ही आने वाला है. ये sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x है ना, वो क्या होने वाला आपको पता है, इतना ट्रिक को सबको पता है. sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या है 1 अपॉन नीचे वाला वैसा ही कॉपी sin x माइनस cos x द होल स्क्वायर दैट इज इक्वल. ये देखो बच्चों 2 sin x cos x माइनस साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x 1 माइनस बाद में साइन बदलो माइनस 2 sin x cos x प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन नीचे वाला पुरानी वही है sin x माइनस cos x द होल. अरे वाह प्लस 2 sin x cos x माइनस 2 कैंसिल. सो व्हाट इज योर dy by dx और dy by dx इज इक्वल टू ये माइनस और माइनस 1 क्या है रे माइनस 2 बराबर अपॉन ये कौन है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स द होल स्क्वायर. बच्चों थ्रू आउट ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, कहीं मेरा एक्स अलग दिखता है तो भी एडजस्ट करो. ये थ्रू आउट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, ये फाइनल आंसर. अंडरस्टूड. सो वी आर सॉल्व दिस प्रॉब्लम. अब होमवर्क के लिए आप क्या करो, ये कॉपी करो पूरा, ये कॉपी करो पूरा और होमवर्क के लिए क्या करो मैं यहाँ लिखता हूँ y इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स द होल स्क्वायर. सॉरी उल्टा किया मैंने इसको बराबर. इसका आप करो, ये होमवर्क करो. होमवर्क फाइंड dy by dx. अंडरस्टूड. या होमवर्क कर प्लस माइनस उल्टा लिख. गुड फॉर प्रैक्टिस. ओके नो स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं करता हूं y इक्वल टू x साइन x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1. So differentiate with respect to x. So y का डेरिवेटिव है dy by dx. That is equal to d by dx of x sin x upon what you have here x square plus 1. ब्रैकेट ही पुट करो. बच्चे u by v रूल है ये, तो क्या होगा रे dy by dx इक्वल टू x square plus 1 d by dx of x sin x minus interchange
x sin x d by dx of x square plus 1 अपॉन ये नीचे वाला जो है x square plus 1 the whole square u by v रू। तो आंसर आएगा x square plus 1। अरे x sin x का डेरिवेटिव u into v रूल है, सो थोड़ा शॉर्टकट मारे क्या? नो शॉर्टकट, रूल इज रूल, किधर भी हो। सो डेरिवेटिव ऑफ x sin x कौन है? x डेरिवेटिव sin x प्लस sin x डेरिवेटिव x, खत्म, नो शॉर्टकट, हो गया। माइनस x sin x, व्हाट अबाउट डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 1? इट इज डेरिवेटिव x स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव 1। हाँ, वो 1 आप डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं, 1 का डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव x स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव 1 बराबर है अपॉन कौन है ये? x स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर, बराबर है ये u प्लस v रूल, ये u इंटू v रूल था। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ dy बाई dx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 इंटू कर्ली ब्रेसेस x sin x का डेरिवेटिव cos x प्लस sin x, x का डेरिवेटिव 1 माइनस x sin x, x का डेरिवेटिव 2x रेज़ टू 2 माइनस 1 बराबर, और 1 का डेरिवेटिव 0। डेरिवेटिव of x रेज़ टू 2 कौन है? 2x रेज़ टू 2। हाँ, यहाँ 2x डायरेक्ट लिख सकते हैं बाय प्रैक्टिस। x रेज़ टू 2 का डेरिवेटिव कौन है? 2x रेज़ टू 2 माइनस 1, और 1 का 0, 1 का कौन है? 0, 2x रेज़ टू 2 माइनस 1 अपॉन ये जो है ना उसका स्क्वायर। सो dy बाई dx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 इंटू, तो इसको आप एक्सपांड कर सकते हैं, x स्क्वायर इंटू x cos x, x क्यूब cos x प्लस x स्क्वायर इंटू sin x, x स्क्वायर sin x प्लस, है ना, मैंने x स्क्वायर से पहले दोनों को मल्टीप्लाई किया और 1 से करूंगा, 1 इंटू x cos x प्लस 1 इंटू sin x इज sin x माइनस ये कौन है? x, ये कौन है? x, ये कौन है? sin x, और ये 2x रेज़ टू 1 है अपॉन नीचे कौन है बेटा? x स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा? dy बाई dx इज इक्वल टू, चलो क्या होगा ये? x क्यूब cos x प्लस x स्क्वायर sin x प्लस x cos x प्लस sin x माइनस 2x x स्क्वायर sin x अपॉन ब्रैकेट, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। देखो इतना सॉल्व करके मुझे खाली 2 टर्म ही सिंप्लीफाई हो जाएंगे। ओके, सो dy बाई dx इज x क्यूब cos x, x स्क्वायर sin x माइनस 2x स्क्वायर sin x, ये होगा माइनस 1x स्क्वायर sin x, अंडरस्टूड? ये आएगा 1x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज 1x यानी x स्क्वायर sin x प्लस बाकी सब वही x cos x प्लस sin x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर। कुछ दम नहीं था इसमें, बट ठीक ऐसा डराने के लिए था ये। यू हैव टू बी केयरफुल टू सॉल्व दिस, अंडरस्टूड? ये एक प्रॉब्लम है आपके साथ। Try to understand. Now बच्चों नेक्स्ट सम है छोटा सा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। y इज इक्वल टू sin x अपॉन 1 माइनस cos x। क्या करेंगे? डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, सो d बाय dx ऑफ y इज d बाय dx ऑफ sin x अपॉन 1 माइनस cos x। सो d बाई dx ऑफ y कहलाता है dy बाई dx, दैट इज इक्वल टू, ये बच्चे u बाई v रूल है, ये u बाई v रूल है, तो पहले क्या आएगा? v यानी 1 माइनस cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ sin x माइनस, इंटरचेंज करो,
साइन एक्स डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन ये जो v है उसका स्क्वायर, यानी कौन है ये 1 माइनस कॉस एक्स उसका स्क्वायर। क्या हो गया रूल? v डेरिवेटिव u माइनस इंटरचेंज u डेरिवेटिव v अपॉन v स्क्वायर। सो हमारा dy बाई dx क्या होगा? इधर dy बाई dx होगा 1 माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कौन है बच्चों? कॉस एक्स है, माइनस साइन एक्स, बट इधर डी बाई डी एक्स ऑफ ये 1 है माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ ये कौन है? कॉस एक्स अपॉन ये कौन है नीचे? 1 माइनस कॉस एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर, और जगह है थोड़ी डी वाई बाई डी एक्स। अब 1 इंटू कॉस एक्स, ये सॉल्व कर लो, कॉस एक्स कॉस इंटू कॉस ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स इंटू 1 का डेरिवेटिव 0 है माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या है? माइनस साइन एक्स। जैसे माइनस साइन आता है छोटा सा ब्रैकेट में छोड़, देखो ब्रैकेट की कमाल देखो, साइन एक्स के बाद एक ब्रैकेट है, 1 का डेरिवेटिव मैंने लिखा 0, ये माइनस साइन पहले से यहाँ खड़ा है, और कॉस एक्स देखा तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या है? कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, वो मैं ब्रैकेट में लिखा अपॉन ये कौन है बच्चों? 1 माइनस कॉस एक्स द होल स्क्वायर, अंडरस्टूड? सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, 1 माइनस कॉस एक्स द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा dy बाई डी एक्स क्या होगा? देखिए ये दिस इज कॉस एक्स माइनस दिस इज कॉस स्क्वायर एक्स माइनस दिस इज साइन एक्स, एंड 0 तो चला गया, और माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा, और साइन एक्स आएगा अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स द ब्रैकेट स्क्वायर। यू गेट कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सॉरी माइनस साइन इंटू साइन, व्हाट यू गेट? साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स द होल square. That is cos x minus, if we take common from both the terms, both become plus and it becomes cos square x. Very interesting problem. Plus sin square x upon 1 minus cos x the whole square. So dy by dx is equal to cos x minus, what is sin square plus cos square x? Is 1 upon 1 minus cos x the whole square. अभी छोड़ के जाने वाला था तो मैं खींच के लाया, आजा बेटा आजा, इसमें कुछ गड़बड़ होने वाला है। ये cos x माइनस 1 है, ये कौन है? cos x माइनस 1, और नीचे कौन है? 1 माइनस cos x। दोनों को सेम कर सकते हैं हम, कैसे? छोटा सा रूल है, a माइनस बी इज माइनस ऑफ b माइनस a। क्या रूल है? a माइनस बी इज माइनस ऑफ b माइनस a। तो यहाँ पे क्या होगा? dy बाई dx होगा cos x माइनस 1 होगा माइनस ऑफ 1 माइनस cos x। बीच में माइनस साइन है ना, तो अगर आपको इंटरचेंज करना है तो छोटा सा रूल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। क्या रूल है? a माइनस बी को उल्टा लिखना है तो माइनस साइन लिखो। हाँ, a प्लस बी है तो आप बिंदास लिख सकते हैं, a प्लस बी इज ऑलवेज इक्वल टू b प्लस a, लेकिन a माइनस बी के लिए नहीं। तो ये cos x माइनस 1 इज माइनस ऑफ 1 माइनस cos x, और नीचे 1 माइनस cos x द होल स्क्वायर। अरे एक 1 माइनस cos x चला गया, तो क्या बचा? dy बाई dx क्या बचा? माइनस कुछ नहीं तो माइनस 1 बचा, और नीचे एक 1 माइनस cos x बचा। अंडरस्टूड? ये हमारा dy बाई dx। ओके, प्लीज टेक डाउन। Now student, the next problem before you is y is root 1 minus cos 2x upon 1 plus। हमारे पास अभी इतने औजार नहीं है डेरिवेटिव के, मैंने आपको सब शस्त्र नहीं दिया कि आप cos 2x का डेरिवेटिव जान सके। आप जस्ट cos x का डेरिवेटिव जानते, 2x का नहीं जानते, ऊपर से रूट भी नहीं जानते। रूट है नहीं है तो u by v रूल लगा सकते, बट cos 2x का डेरिवेटिव क्या है? आप अटक जाएंगे। यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री की मदद से सॉल्व करेंगे। रूट देखो बच्चों, दो फॉर्मूले, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर थीटा। मैं इसको प्यार से आधा बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? ये 2 थीटा है तो थीटा। मेरे ट्रिगो के वीडियो में आप ये जानोगे, आधा
आपको वहां दिया है, और 1 प्लस कॉस टू थीटा है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, यानी आधा। यानी अगर 2 थीटा है तो ये थीटा होता है, माइनस साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा आता है, प्लस साइन है तो कॉस स्क्वायर थीटा आता है, लेकिन 2 थीटा का आधा होके थीटा आता है। तो व्हाट इज 1 माइनस कॉस 2x? इट इज 2 माइनस है इसलिए साइन स्क्वायर 2x का आधा x, एंड 1 प्लस कॉस 2x है 2 कॉस स्क्वायर 2x का आधा x। तो ये 2 कैंसिल होगा, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x का रूट है साइन x और कॉस स्क्वायर x का रूट है कॉस x। तो ये सिंपल हो गया, y इक्वल टू साइन x अपॉन कॉस x tan x। ये तो पहले लेक्चर का फॉर्मूला हो गया। अगर y tan x है तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव होगा dy बाई dx, और यहाँ पे होगा dy बाई dx ऑफ tan x। तो आंसर क्या होगा? dy बाई dx इज इक्वल टू tan x का डेरिवेटिव है, सीधा साधा फॉर्मूला सेक स्क्वायर x। और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको ये फॉर्मूले ट्रिगो के मालूम होने चाहिए। अगर ये मालूम नहीं है तो भी आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ऐसा खाना खाने से, ये ऐसा खाना भी नहीं, वो काठी को टांग के खाने के पीछे आपको दौड़ना पड़ेगा, वो मेथड आएगा इफ यू डोंट यूज द फॉर्मूले। ये फॉर्मूले आपको मालूम होने चाहिए। जैसे जैसे फॉर्मूले लगेंगे मैं आपको बताना चाहूँगा, बाद में आप लिस्ट भी आपके पास है वो भी मैं भेजूंगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंपल बट इंपॉर्टेंट।